To one and all present here, honorable galaxy of intellectuals, our excellencies, invited speaker, our guest, teachers, and all my dear participants. At the outset, on the behalf of entire Agnihotri Group of Institutions and Sri Shankar Prasad Agnihotri College of Engineering, Varda, I welcome you all in this webinar on the topic of role of self-esteem in your success. Self-esteem is important for the impact of your decisions-making process, your relationships, your emotional health, and your overall beings. Very important topics for your today's pandemic situation to boost your mind and improve your emotional health. We feel honored to have with us on these occasions His Excellencies Dr. Sanjay Uttarwar sir, renowned soft skill trainer and well-known academicians from Central India and especially Nagpur regions. About the Uttarwar sir having a 30-year teaching and 8-year industrial experience. Uttarwar sir published 63 international as well as national journals and conference. Sir received a Quality Progress Award 2018 from Institutions of Engineering in collaborations with Sresh Quality Management System for outstanding achievements and contributions to the field of academic and research. Sir also received a Best Educational Achievers Award 2018 from Integrated Chamber of Commerce and Industries, New Delhi for outstanding achievements contributions to the field of technical research. Sir awarded a Primetime Global Education Excellence Award 2018 from Primetime Research Media Private Limited, New Delhi for the development of research and training. Sir also having a Global Excellence Award by Global Leader Foundations, New Delhi for outstanding achievements in the field of academic. And most important, Sir awarded an Excellent Principal Award 2019 from Saksham Society Jaipur for outstanding achievements to the field of academic and research. And now, Sir is also a well-known singer in a Central India regions and in Nagpur regions. Welcome, Uttarwar sir. Heartily welcome. Thank you, sir. Thank you. Okay. We also feel honored to have with us our today's program organizer, His Excellencies Dr. Rajkishore Tugnaik sir. Sir is renowned technical expert and well-known academicians and principal of Sri Shankar Prasad Agnihotri College of Engineering, Varda. Welcome you, sir. Don't take a much more time. May I request to Honorable Dr. Rajkishore Tugnaik sir to please give the introductory speech on today's occasions. Tugnaik sir, please. Thank you, sir. Good evening, Good one evening, and sir. all. Hi, friends. This is the first webinar, open webinar for our space students as well as the students of the 12th science. I first welcome Dr. Uttarwar sir giving time to us for this a most important topic, self-esteem. What is the role of the self-esteem for the development of the human being? Friends, so many times we say that thus a person who having the self-esteem, he can do anything. I want to tell you one story regarding the self-esteem. आत्मविश्वास के बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. आपने अनुरिमा सिन्हा नाम की लड़की का सुना है किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. This is the first handicapped lady who climbed the Everest. They're related to the Arunima Sinha. A big accident happened at the age of 25 or 26. She is traveling from through the train, and some unwanted element of the society, they having the fight between them, and she fall down to the train. Then after the 72 hours, some people found that she is much more injured and she directly
admitted to the hospital. There, her leg, her arm, they are cut from their body. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, स्पोर्ट्समैन थी। और ये कहने में मुझे अभिमान होता है कि आत्मविश्वास कैसे क्या करवा सकता है। उस लड़की ने, अरुणिमा सिन्हा, सिर्फ 31 साल की बच्ची थी, उस बच्ची ने एवरेस्ट क्लाइम किया और वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। भारतीय लड़की है, आप में से एक है, साधारण पर मध्यम परिवार से लड़की थी, तो उस लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हैंडीकैप होने के बावजूद भी, या अपन हम लोग कहेंगे स्पेशल एबल पर्सन होने के बावजूद भी। और उसमें भी हमारे भारतीय संस्कृति में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मेल कैंडिडेट के बराबरी में नहीं माना जाता है, फिर भी आत्मविश्वास के जोर पर तो फर्स्ट हैंडीकैप वुमन क्लाइम द एवरेस्ट एंड बिल्ड द रिकॉर्ड। ये होता है आत्मविश्वास। हम देख रहे पैंडेमिक, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, किस तरह की कंडीशन चल रही है। एक 0 ईयर हो गया हम लोगों के बीच में। तो उत्तरवार सर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उत्तरवार सर ने कहा कि अभी सर बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास बहुत डाउन हो गया है, घर के घर में रहते हैं, क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ध्यान है नहीं है, घर के काम होते हैं, घर के पिताजी बोलते हैं अरे तू यहाँ क्या बैठा है, ये करके आ, वो करके आ। जो एंजॉयमेंट होती है वर्धा में, नागपुर में, जहां पर हम लोग एजुकेशन में जो एंजॉयमेंट होती है वो एंजॉयमेंट एक साल में बहुत बुरी हालत होती है। ऊपर से मास्क पहनो, ऊपर से फिजिकल डिस्टेंसिंग रहो, तो इस वजह से हम लोगों का जो आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं डगमगा जा रहा है। हम लोगों का भी, आप लोगों का तो नेचुरल होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये टॉपिक, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि आज हमें हमारे साथ में डॉक्टर उत्तरवार, एक वेल नोन स्पीकर हमें अवेलेबल हुए हैं। तो इन बताई बातों का आप लोग अच्छे से अपने जीवन में पूर्ति करें एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद द डॉक्टर उत्तरवार। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. So, should I start? Galat, sir. Okay. So, good evening to one and all who are online here. Hey, dudes. Yes, sir. दोस्तों Yes, sir. कैसे हो? Fine. You must be fine. एग्जाम्स चल रही है ना? और उसके दौरान डॉक्टर उत्तरवार आपसे बात करने के लिए आ गए। At the outset, I would like to thank Galat sir for a very nice introduction he has given to me. When he was giving my introduction, all things were running in front of my eyes, and the screen was that the film was running in front of my eyes. That whatever I have done in my life. Thanks, Galat sir. Thanks to my friend Tugnay sir, Dr. Tugnay sir. He's my motivator. He's my mentor. He always encouraged me. What I am today, I am a renowned motivational speaker on global level. It is because of the friends like Rajkishore Tugnay sir. These people are encouraging me from last 20 years. And because of these people, today I am here. I am very much thankful to you, sir. Yeah, dear friends, we will switch over to the topic. At the outset, I will share you that our lecture will be in 2 sessions. When I intimate you, then at the end of first session, I will go out and again I will come in. So all of you also have to do the same thing. Okay. So our today's title of our lecture is self-esteem, role of self-esteem in your success. तुगनाय सर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द बोथ साइड्स ऑफ ए सिंगल कॉइन। एक नाणा, एक कॉइन के 2 साइड्स है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम आज सेल्फ एस्टीम के बारे में बोलने जा रहे हैं।
सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में फिर कहीं एक बार लेक्चर लेंगे। तो दोस्तों सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी कीमत, व्हाट यू आर। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपके दोस्तों ने आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो पीपल हु आर अराउंड यू दे शुड रिस्पेक्ट यू, देन माय डियर फ्रेंड्स you should learn to respect yourself. Unless and until you start respecting yourself, society will not respect you. Mind में, जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो इसके लिए अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखो। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या? सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की कीमत, खुद का रिस्पेक्ट। और आदमी, एक व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से रेट करता है, अपने आप को किस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। आज अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर आपका सेल्फ एस्टीम क्या है, मैं बोलूँगा मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हेल्दी है, बहुत हेवी है, बिकॉज मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ तभी तो सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट करेगी ना, isn't it? So what is self esteem? आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हो? आप अपने आप को अच्छा आदमी समझते हो या अपने आप को गया बीता आदमी समझते हो? अपने आप को स्कॉलर समझते हो या अपने आप को बैक बेंचर समझते हो? ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको कि सेल्फ एस्टीम कैसे आपके सक्सेस में अफेक्ट करती है। तो सेल्फ एस्टीम कैसे देखेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे? तो सेल्फ एस्टीम कंपासेस विद बिलीफ। कुछ लोगों के आपने बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, नो आई एम कॉम्पिटेंट, आई विल फेस एनी चैलेंज, पेपर कैसा भी आओ मैं पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा। दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कुछ बच्चों में वो नहीं होता, वो हरदम डरे डरे सहमे सहमे रहते, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। सो दैट इज इट इज बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या है? विश्वास। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति कितना विश्वास है, मैं ये कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात है इमोशंस। आपके इमोशंस, आप एनकरेजिव हो, उत्साही हो या निरुत्साही हो। आपको अपने आप पे गुरूर है या अपने आप पे शेम है। आप बोलोगे सर आप क्या बता रहे हो, हम अपने आप पे शेम क्यों रहेगा? दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पे ही शेम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे शेम करते हैं, अपने लाइफ पर शेम करते हैं, अपनी सिचुएशन पर शेम करते हैं। और जब तक वो ये सोचेंगे नहीं, ये रोकेंगे नहीं, तो उनका सेल्फ एस्टीम कभी बढ़ नहीं सकता। और सेल्फ एस्टीम कैसे समझने का? ये आदमी के बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करता है। आप बोलोगे सर एक आदमी का सेल्फ एस्टीम लूज है, कम है, अच्छा है, कैसा है, कैसे समझे हम? अगर एक आदमी असर्टिवनेस दिखाता है, उत्साही है, असर्टिवनेस मतलब क्या? कोई भी काम करने के लिए उत्साह, चलो अपन करते हैं, चलो। अपने कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं जिनको ना पता नहीं रहता है। आप अभी आपके भी ऐसे एग्जांपल्स होंगे कि आपने किसी दोस्त को बोला चल यार ये काम करते हैं, 10 लोग ना बोलेंगे लेकिन एक आदमी मिलता है अपने को, वो बोलता है नहीं चलो करके देखते हैं। दैट इज असर्टिवनेस एंड दैट इज द साइन ऑफ गुड सेल्फ एस्टीम। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो फिर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और जो लोगों का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उनका सेल्फ एस्टीम भी अच्छा होता है। तो आप बोलोगे सर ये सब बातें सक्सेस से कैसे रिलेट करती है? माय डियर फ्रेंड्स, these all things relate with the success. These all things relate with the success. How? जब तक आप बोलोगे नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं, जब तक आप बोलोगे नहीं कि आई एम अ स्कॉलर और आई एम अ राइटर, आई एम अ गुड राइटर और आई एम अ गुड ओरेटर, जब तक मैं ये बोलूंगा नहीं कि आई एम अ गुड ओरेटर, why should people trust me that I am a orator? Why should people trust my words? So अपने आप को पर्टिकुलर कौन से डायमेंशन से देखते हो आप,
उस पर आपका सेल्फ एस्टीम डिपेंड होता है। सो अपने आप को कभी कम नहीं आंकने का। यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट। सो इट विल एनहांस योर सेल्फ एस्टीम। नाउ अपने आप पे अभिमान करो, सेल्फ प्राउड, अपने आप का अभिमान रखो, सेल्फ, यू शुड बी प्राउड बाय योर सेल्फ। उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप कोई भी चैलेंज लाइफ में जो आता है, ठीक है, वो आप फेस कर पाओगे। और अपने आप को हरदम समझाओ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम ए गुड पर्सन, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और हमारा सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप होता है पता है, हमारे आजू बाजू में जो बातें होते रहती है, हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटते रहती है, हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, बचपन से हम जो एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, उस एक्सपीरियंस से हम अपना सेल्फ एस्टीम बनाते जाते हैं। सेल्फ एस्टीम इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिफर्स टू पर्सन होता है, उस तरह से सेल्फ एस्टीम इज आल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप कौन से आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, आपका बचपना कैसे गया है, ठीक है। आप जब छोटे से बड़े होते हैं तो आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके सोसाइटी मेट्स आपसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी रिलीजियस अथॉरिटीज, मतलब आप कोई धर्म को मानते हो, कोई महाराज को मानते हो, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उस पर आपका सेल्फ एस्टीम अपने नजर में डिपेंड होता है। मतलब आप अपने आप को लोगों के नजरिए से, लोग आपको क्या समझते हैं, उस नजरिए से देख के आप अपने आप का अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हो। तो अपने आप को कभी कम आंकने का नहीं। और हर आदमी के अंदर एक इनर वॉइस होता है। इनर वॉइस मतलब क्या, आत्ममन। प्रत्येक माणसाकडे दोन मन असतात। कुठलेही काम करताना त्याला एक मन म्हणतं कर आणि एक मन म्हणतो करू नको। तुम्ही कुठले चुकीचे काम करायला गेलात तर तुम्हाला एक मन मधलं आतलं सांगत असतं की बाबा हे काम करू नको, किंवा दुसरं मन म्हणतो करू नको। तर त्या इनर व्हॉइसला ऐकायला शिका, त्या इनर व्हॉइसला ऐकायला शिका। तो तुमचा सेल्फ एस्टीम घडवण्यामध्ये, तुमचा सेल्फ एस्टीम बनवण्यामध्ये फार महत्वाचा रोल प्ले करतो। ज्या लोकांचा सेल्फ एस्टीम खूप हेल्दी असतो, ज्या लोकांचा सेल्फ एस्टीम खूप हेल्दी असतो, त्यांचा इनर व्हॉइस सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो। समजून घ्या मला काय म्हणायचं आहे, ज्या लोकांचा सेल्फ एस्टीम चांगला असतो त्यांचा इनर व्हॉइस सुद्धा स्ट्रॉंग असतो। त्या लोकांना नकार घंटा ऐकायची सवय नसते। कुठलीही काम ते करायला जातात आणि उत्साहाने करायला जातात। पण ऑन द कॉन्ट्ररी, ज्या लोकांचा सेल्फ एस्टीम हा कमी असतो, जे लोक स्वतःची किंमत करत नाहीत, त्या लोकांच्याकडे एक क्रिटिक त्यांच्या मनात बसलेला असतो। क्रिटिक म्हणजे कोण, टीकाकार। ते स्वतःचीच टीका करतात। ज्या लोकांचा सेल्फ एस्टीम कमी असतो त्या लोकांच्या मनामध्ये एक टीकाकार बसलेला असतो आणि ते स्वतःचीच टीका करतात आणि स्वतःला क्रिटिसाइज करतात, स्वतःला शिक्षा देतात, स्वतःसोबत बिलिटिंग करतात। बिलिटिंग म्हणजे काय, स्वतःलाच इग्नोर करतात। स्वतःच्या कॅपेबिलिटी, स्वतःच्या क्वालिटीज, स्वतःचे प्रॅक्टिस, स्वतःची इनर एबिलिटी, या सगळ्या गोष्टीला ते इग्नोर करतात आणि मग त्या ठिकाणी त्यांचा सेल्फ एस्टीम वीक होऊन जातो। कळलं तुम्हाला? तर आपला आतला जो व्हॉइस आहे, इनर व्हॉइस, त्याला ऐकायला शिका, इनर व्हॉइसला शिका। इनर व्हॉइस तुमच्या, आणि जर तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह थिंकिंग करताय, तुम्ही ऑप्टिमिस्टिक थॉट करताय, तर ऑब्व्हियसली तुमचा इनर व्हॉइस तुम्हाला चांगलंच बोलणार आणि तुम्ही त्याचं ऐकलं तर तुमचं सेल्फ एस्टीम चांगलं डेव्हलप होणार। पण तुम्ही एखाद्याचा सेल्फ एस्टीम खूप कमी आहे, तुम्ही कसं ओळखणार? एखाद्याचा सेल्फ एस्टीम कमी आहे हे तुम्ही कसं ओळखणार? तर त्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी असतात। त्याच्यामध्ये व्यक्तिमत्वाच्या 3 कॅटेगरी। व्यक्तिमत्वामध्ये मुलगा पण आला, मुलगी पण आली, लेडीज पण आला, जेंट्स पण आला। पहिली कॅटेगरी आहे इम्पोस्टर। इम्पोस्टर म्हणजे काय?
तो व्यक्ती नेहमी हे भासवायचा प्रयत्न करतो, हे दाखवायचा प्रयत्न करतो की जे तो नाही, की जे तो नाही. समजून जायचं आता सेल्फ एस्टीम खूप वीक आहे. ज्या क्वालिटी त्याच्यामध्ये नाही, जी कॅपेबिलिटी त्याच्यामध्ये नाही, पण तो नेहमीच असं दाखवायचा प्रयत्न करतो दुसऱ्यांना की माझ्याकडे या सगळ्या गोष्टी आहे. आलं लक्षात? त्या लोकांना त्याचा सेल्फ इस्टीम हा वीक असतो. तो नेहमी मी खूप खुश आहे, आनंदी आहे, मला सगळं येतं असा दाखवायचा प्रयत्न करतो. Okay, 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 okay. He always tries to show that he is happy, he is successful. Dear friend, there was some instruction from my friend. Sir, you should talk in Hindi, Marathi, and English. Okay, okay. I will talk in 3 languages. Okay. So there are some people who tries to show that I am very happy, I am very successful, but no. From inner side, they are always terrified by the failure. अंदर से वो डरे सहमे रहते हैं, अंदर से वो डरे सहमे रहते हैं. उनको फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर हरदम लगा हुआ रहता है. और उनको हर वक्त ये लगता है कि किसी ने उसको एनकरेज करना चाहिए. वो अपना मुखौटा, मास्क क्या बोलते ना, मुखवटा, वो अपना मुखवटा लगा के घूमते रहते कि आई एम कैपेबल पर्सन. बट वो लोग कंपटीशन में काम नहीं कर पाते. उनके अंदर परफेक्शनिज्म नहीं रहता. वो कोई भी काम करेंगे धकावरे शामराव स्टाइल में काम करेंगे, परफेक्ट काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? चाल ढकल. आज का काम कल पे टालने का, कल का काम परसों पे टालने का, परसों का काम नरसों पे टालने का, और काम ही नहीं करने का. ये होता है. जिसका लो एस्टीम है उसको पहचानने का एक जरिया. दूसरी कैटेगरी होती है लो एस्टीम वाले लोगों की, रिबेल. रिबेल मतलब क्या? वो अपने आप को कुछ तो भी तिस्मार खान समझते, अपने आप को कुछ तो भी तुर्रम खान समझते, और हर किसी को ओपिनियन देते रहे. हर किसी को आप ऐसे आदमी से वास्ता पढ़ाऊंगा आपका. यू मे हैव मेट विद सच पर्सन्स who always used to advise others. ये कैटेगरी होती है रिबेल की. कभी कभी ये लोग पावरफुल होते हैं, कभी कभी ये लोग पावरफुल होते हैं, और पावरफुल होने के कारण कंटिन्यूअस एंगर दिखाते. हम मराठी में बोलते हैं गुरमीत. तो नेहमी गुरमी दाखवतो, तो नेहमी गुरमीत असतो, असा एक वाक्प्रयोग आपण मराठीमध्ये वापरतो. गुरमीत असतो म्हणजे काय? ही ऑलवेज shows his anger by his body language or facial expressions that I am somebody else. I am somebody else and you should respect me. Such type of people are always blame others. ये लोग कैसे पहचानने? ये दूसरों को हरदम दोष देते हैं, अपने तरफ कभी दोष नहीं लेते हैं. वो नियम तोड़ते हैं, उनके पास में वो हरदम नियम तोड़ते हैं, रूल्स तोड़ते हैं और लॉस तोड़ते हैं, और हरदम अथॉरिटी के साथ में फाइट भी करते हैं. वो जहां कहीं भी काम करते हैं या जो भी अथॉरिटी से उनका वास्ता पड़ता है उनसे वो फाइट भी करते हैं. और तीसरी कैटेगरी है लो एस्टीम वालों की, वो है लूजर. आपके साथ में ऐसे लोग भी कुछ लोग होंगे जो ऑलवेज हेल्पलेस रहते, ऑलवेज वो कुछ करते ही नहीं जिंदगी में. अभी आपके दोस्तों मित्र ऐसे होंगे जो कुछ करते ही नहीं, और ऑलवेज होप दैट समवन शुड कम एंड हेल्प हिम और हर टू डू हिज वर्क. प्रैक्टिकल लिखना है, जर्नल लिखना है, पढ़ाई करना है, ये अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, और हरदम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि somebody should come and help them to do his work or do his task. Is it possible? आपको लगता है पॉसिबल है? लेकिन this is the third category of the person to understand is who is having low esteem. उनको हरदम लगता कि लोगों को मेरी दया आना चाहिए. आप देखो, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वालिटी से आपके जो दोस्त मित्र है या आपके बाजू बाजू में जो लोग हैं उनको आप
करके देखो, कंपेयर करके देखो द थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। वो हरदम क्या सोचते हैं, लोगों ने मुझ पे दया करनी चाहिए, पीपल शुड पीटी मी। पीटी मतलब क्या होता है, लोगों को मेरी दया आनी चाहिए, और मेरी दया आके लोगों ने मेरा काम कर देना चाहिए। ओके सो और वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हरदम पीछे रहते हैं। आप देखो ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, कोई भी काम रहा वो पतली गली कर लेते। पतली गली समझते हो ना आप लोग, कुछ भी काम दिया सर ने या कुछ अपने पिताजी ने या घर के लोगों ने, उसको अपन टाल देते। तो ये थर्ड कैटेगरी। और फिर ऐसे लोगों में असर्टिवनेस स्किल्स नहीं रहते। असर्टिव मतलब ऑप्टिमिस्टिक स्किल्स, कोई भी काम करने के स्किल उनमें नहीं रहते, वो हरदम अंडर अचीवमेंट रहते। और रिलेशन में जो लोग हैं उन्होंने मेरा काम करना चाहिए, ऐसा वो हरदम लोगों पे रिलाय करते, लोगों पे एक्सपेक्ट करते। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? एम आई ऑडिबल? हाँ Yes, sir. हाँ, ओके सबको समझ रहा है ना बेटा? हाँ Yes, sir. या ओके। तो अभी ये बात हो गई कि भैया एक आधे का लो एस्टीम कैसे पता चल गया, तो इसका मतलब क्या जिसका लो एस्टीम है अपना दोस्त के हरदम लो एस्टीम वाला रहेगा क्या? नहीं, उसका लो एस्टीम हमको बढ़ाने का है, इसलिए तो ट्रेनिंग है ये। मैंने पहले लो एस्टीम समझाया आपको, अब मैं समझाऊंगा कि उसका एस्टीम कैसे बढ़ाने का। जिसका एस्टीम सेल्फ एस्टीम अच्छा है वो तो बल्ले बल्ले करेगा, लेकिन जिसका नहीं उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, वो भी तो अपना दोस्त है, उसको भी तो सिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो एस्टीम। अभी आपने 3 पर्सनैलिटी देखा, जिसका सेल्फ एस्टीम लो होता है उसकी 3 पर्सनैलिटी मैंने आपको भी बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो एस्टीम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो एस्टीम मतलब लो एस्टीम होने के कारण क्या होता। लो एस्टीम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब लो एस्टीम होने के कारण क्या होता, एंजाइटी बढ़ती। अब व्हाट इज बेटा एंजाइटी, पता है आपको सबको? अनइजीनेस। एंजाइटी में मतलब क्या, व्हाट इज एंजाइटी? अनइजीनेस। उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहती, वो अकेलापन महसूस करते और हरदम डिप्रेशन में जाते। देखो आप, आपके दोस्त मित्र इस तरह के कुछ होंगे जिनको इन सब बातों से ऊपर लाने का बहुत जरूरी है, तो वही काम हम आज करने वाले हैं। और फिर जिनका इस तरीके का एटीट्यूड रहता, बर्ताव रहता, वो दोस्ताने में हरदम प्रॉब्लम हो जाते, उनके रिलेशन हरदम ब्रेकअप हो जाते। आप देखो वो किसी से भी ज्यादा दिन तक अपने रिलेशन कायम नहीं रख सकते। और जब बड़े हो जाते पर्सन या स्टूडेंट, हरदम स्टूडेंट फेज में तो नहीं रहेगा, बड़ा होगा, शादी होंगी, नौकरी लगेगा, कहीं तो भी जॉब करेगा, he will serve somebody else, लेकिन he will not perform his job with sincerity. Because why? Because he's a person having low esteem. He didn't respect himself. And once he crosses certain level of depression, it turns towards the temptation to take drugs and alcohol. हम देखते हैं अच्छा खासा आदमी यार खराब हो गया, अच्छा खासा आदमी यार गलत रास्ते पे चला गया, इस तरीके का डायलॉग हम यूज करते हैं, हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं। लेकिन कभी ये कोई सोचता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है, सॉफ्ट स्किल्स जो है, इसके ऊपर हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितना थ्रस्ट देना चाहिए उतना दिया ही गया नहीं। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये सब बातों पे थ्रस्ट दिया है कि बच्चों को बालवाड़ी से और बालक मंदिर से ये सब बातें सिखाना चाहिए। अभी आप में से बहुत से लोगों का एजुकेशन जिला परिषद स्कूल में होगा, किसी का कॉन्वेंट में हुआ है, किसी का सिटी के कॉलेज में हुआ है, किसी का रूरल कॉलेज में हुआ है। तो वहां पे टीचर लोगों को ये बातें पता नहीं है, तो स्टूडेंट को कहाँ से पता रहेंगी?
सॉफ्ट स्किल के बारे में तो इतनी पैथेटिक कंडीशन है, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है उसको सॉफ्ट स्किल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चों को क्या सॉफ्ट स्किल देगा, क्या बिहेवियर साइलेंस सिखाएगा, क्या एथिक्स सिखाएगा, क्या मैनर सिखाएगा। ये बड़ी शोकांतिका है आज के फील्ड की, और इसके कारण फिर बच्चे सफर हो जाते। कैलिबर रहता है बच्चों में, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, सेल्फ एस्टीम नहीं रहता, और बाकी जो सॉफ्ट स्किल जो है ये दोनों इस चीज पे बेस करते हैं। आप अपने आप को कैसा रेट करते हो उसके ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बेस करता है। अब ये तो होगी, अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेल्फ एस्टीम की पहचानना कैसे, सेल्फ एस्टीम की पर्सनैलिटी कैसे पहचानने का, और हमने क्या देखा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। बट माय फ्रेंड्स, एक आधी बात, कोई भी चीज हो, हम बर्थ से सीख के नहीं आते। सिचुएशन, परिस्थिति, हमारे सर्कमस्टांसेस हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। इट्स अप टू अस कि हम हमारा एंटेना खुला रखते हैं कि नहीं। आप आपका एंटेना खुला रखा करो, अच्छी बातें जब आपके पास आती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत लोगों का एक एटीट्यूड होता है, इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, ये तो मुझे पता है, वो तो मुझे आता है, और फिर ऐसे लोग जिंदगी में कभी डेवलप नहीं हो सकते। माइंड में तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते और कभी डेवलप नहीं हो सकते। फिर अगर आपको डेवलप होना है, अगर आपको खुद को बनाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि जो चीजें आपके हिस्से में आ रही है, जो चीजें आप सोसाइटी या आपकी सिचुएशन आपको दिखा रही है, वो बातें आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, वो बातें आपने सीखना चाहिए। सेकंड पार्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, सेकंड पार्ट में वी आर गोइंग टू सी द रेमेडीज फॉर बेटर सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाने का, सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाने का, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा है, मैं 15 सेकंड के लिए बाहर जाऊंगा और 15 सेकंड के बाद फिर अंदर आऊंगा। आप सभी को फिर से यही लिंक के साथ में अंदर आना है, और जब आप सब लोग आओगे तब मैं फिर से सेकंड पार्ट अपने इस सेशन का चालू करूंगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया समझा बेटा आपको? अभी आप बता सकते हो मुझे, स्पीकर चालू कर दो। हेलो, हाँ, जो चीजें हमने डिस्कस किया अभी तक, हाँ समझ में आ गया बेटा? ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके, ओके ओके ओके। हाँ, तो अभी मैं बाहर जाऊंगा 15 सेकंड के लिए और फिर से अंदर आऊंगा। आपको भी फिर से अंदर आना है, और सेकंड पार्ट में हम फिर देखेंगे, ठीक है?